সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। শনিবার শুরুর দিকে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকার জেলাগুলিতে ড্রোন হামলা হলেও রাতের দিকেই হামলা বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাক সেনার শেল বর্ষণও রাতভর হয়নি বলে জানায় ভারতীয় সেনা। কাশ্মীরের স্থানীয় মানুষও চাইছেন এই সংঘর্ষ বিরতি বজায় থাকুক দুই দেশের মধ্যে। কাশ্মীরের বাসিন্দা আব্দুল রশিদ বলেন, আমরা যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানাই। ভারত সর্বদা শান্তির কথা বলেছে এবং সর্বদা শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। গত এক মাস ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি, এখানে পর্যটকদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের। যুদ্ধবিরতি হলে পর্যটকরা এখানে আসবেন। আমাদের সমস্ত পরিবহনকারী এবং হাউসবোট মালিকেরা এখন চাপে রয়েছেন। যদি শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে তাহলে এটা আমাদের দেশের জন্য সবথেকে বড় সাফল্য হবে। আমরা শান্তির পক্ষেই আছি। কি বলছেন কাশ্মীরের বাসিন্দা আব্দুল রশিদ, আসুন শোনাই। कल जो सीज फायर हुआ है, लेकिन हम इसको वेलकम करते हैं कि पूरे खासकर जो हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान ने हमेशा अमन पसंदी की बातें की और अमन का साथ दिया हिंदुस्तान ने। और हम इसका पूरा वेलकम करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर आपने देखा है जो पिछले एक महीने से माहौल बना हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे टूरिस्ट का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी आप लोग जानते हो कि आजकल जो हम अगर सीज फायर होगा तो टूरिस्ट आएगा, जो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर है या हाउस बोट वाले हैं या बाकी तिजारत पेशा जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त बिल्कुल परेशानी हाल है। अगर अमन होगा, अमन और भाईचारा होगा, भाईचारा वो सबसे बड़ा कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। और जो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हाल क्या है, यहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है और उन्होंने गाड़ियां खरीदी है और आज एक महीना हो गया उनको बिल्कुल वो ठप होकर रह गए हैं। सीज फायर को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं क्योंकि उससे टूरिज्म आ जाएगा, यहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी और अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, भाईचारा होगा। लोग परेशान हाल है। अगर इस सीज फायर जो हुआ है इससे बिल्कुल कश्मीर, खाली पूरे मुल्क में खासकर वादी कश्मीर के अंदर अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, भाईचारा होगा। क्योंकि यहाँ हर कोई इंसान इस वक्त परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, बाकी जितने भी लोग हैं हम इस वक्त परेशान हाल है, जिनको इस वक्त बैंक का किस्त अदा करना वो नहीं कर पाते हैं। देखिए हम खासकर हम अपने देशवासियों को अपनी तरफ से, वादी कश्मीर की तरफ से हम उनको यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग अमन के साथ है, पूरा मुल्क अमन के साथ है। सीज फायर जो हुआ है हम इसको वेलकम करते हैं ताकि कश्मीर के अंदर फिर से वो बाहर आ जाए, वो डेवलपमेंट हो जाए। जो बाहर हमने पिछले 1.5 महीने पहले देखा था, जो जोश खरोश यहाँ पे टूरिज्म का था, टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे थे, हम उनको अभी भी हम उनको वेलकम कर रहे हैं, वो आ जाए कश्मीर के अंदर और अपना लुत्फ अंदाज हो जाए कश्मीर की सीनरी से, ताकि यहाँ पे जो कश्मीर है ये एक गुलदस्ता है, ये पूरे देश का गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को देखने के लिए आ जाए लोग, डरे नहीं, क्योंकि कश्मीरी मेहमान नवाज लोग हैं। कश्मीरी जितने भी हमारे टूरिज्म भाई है वो आ जाए। তবে জিহাদিরা ভারতের দিকে তাকালে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মারব। ভারত পাক সংঘর্ষের বিরতির মধ্যে জিহাদিদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, কাশ্মীরে যে সমস্ত জিহাদিরা হামলা চালিয়েছে ও বহু পরিবারের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল তাদের ন্যায় বিচার পাইয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটা সামরিক অপারেশনই নয়, এটা ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সুচিন্তিত ইচ্ছা শক্তির প্রতীক। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যখনই কোনো জিহাদি হামলা হবে তখন ভারতই হোক বা ভারতের বাইরে পালিয়েও দুষ্কৃতীরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না, নিরাপদে থাকতে পারবে না। রাজনাথ সিং বলেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের জিহাদি পরিকাঠামো ধ্বংস করার জন্য অপারেশন সিন্দুর চালু করেছে। আমরা কখনো তাদের সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করিনি, কিন্তু পাকিস্তান কেবল ভারতের বেসামরিক এলাকাগুলিকেই লক্ষ্য করেনি, মন্দির, গুরুদ্বারা এবং গির্জাগুলিকেও আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। বীরত্ব এবং সাহসিকতার সঙ্গে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সংযম প্রদর্শন করেছে এবং পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানগুলিকে লক্ষ্য করে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। আমরা কেবল সীমান্তের কাছে সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করেই আক্রমণ করিনি, বরং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিধ্বনি রাওয়ালপিন্ডিতেও শোনা গিয়েছে, যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত। উরির ঘটনার পর সমগ্র বিশ্ব দেখেছে ভারতে জিহাদি হামলা চালানোর পরিণতি কি হয়।
যখন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে। পুলওয়ামার পরে যখন বালাকোটে বিমান হামলা চালানো হয়েছিল তখন তারা তা দেখেছিল। পেহেলগাম ঘটনার পর ভারত যখন পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং একাধিক স্ট্রাইক করে তখন বিশ্ব সেটা দেখেছে। কি বলেছেন রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শুনবো। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।